Namaste, Sat Shri Akal, Adab. Welcome to In the Air, sponsored by 11 Wickets, which is, of course, that one-stop destination for you for everything related to fantasy sports. My name is Nivedhana. Prabhu, hum discuss rahe hain about match number 40, everything, the battle between Hyderabad and, of course, Rajasthan. Now, where is all this excitement happening? Let's find out. Let's take a quick look as to where the action is going to be taking place today, and, of course, at what time as well. If you could be taking a look at the action to be happening in Dubai International Cricket Stadium, of course, happening at 7:30 p.m. IST. Now, both these teams are looking forward to get that win. लेकिन most importantly, क्या हमारे experts सोचते हैं which is that team उनके हिसाब से जो जीतेगा आज? We'll find out all of that. But if you guys have any questions as well, do put that in the comment section. Former India cricketer, of course, VRV Singh will be joining us on the show. He's in the studios, and then we're going to, of course, talk to him and find out कि उनके हिसाब से कौन जीतेगा. But until then, of course, अगर आपके कोई questions हैं to ask him and आपकी predictions, आपकी analysis इस match के बारे में आपको क्या लगता है? Of course, हैदराबाद की performance काफी खास नहीं रही है, but on the other hand, Rajasthan is having, a little bit of a win, a little bit of a loss, but a lot of things are going to be happening. Like in terms that, of course, to continue talking about this amazing match, we're going to get former Indian cricketer VRV Singh in the studios with us to talk to you and, of course, talk to me as well about today's match. VRV, great to have you back on the show. आज का clash आपके हिसाब से कितना मजेदार होगा? जी अच्छा मैच होने चाहिए ज़रूर, और क्योंकि देखिए ऐसे है कि राजस्थान स्टिल इन द टूर्नामेंट और उनको जीत की बहुत ज़रूरत है। पर उसी के साथ एक चीज़ बोलनी चाहूँगा कि जैसे SRH खेल रही है, बहुत बुरा खेल रही है, बट वो पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं बाकी टीमों की, जो उनके बाकी बचे हुए गेम्स हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स को बहुत बढ़िया खेलना पड़ेगा, बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो टूर्नामेंट में बने हुए हैं। उनके मेन खिलाड़ियों को स्टेप अप करना पड़ेगा ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ज़रूर बढ़िया गेम होगी, और मेरे ख्याल से T20 ऐसा फॉर्मेट है, कोई भी टीम किसी भी दिन बहुत डेंजरस हो सकती है। सो होपफुली वी विल हैव अ गुड गेम. Right, hopefully good game, because last time around, of course, जब VRV had joined me on the show, he said it was going to be an exciting match, और वही हुआ. So if his prediction has started on the note कि ये मजेदार game होगा, शायद होगा. But before we get into all the analysis and taking, of course, VRV's opinion as well, let's quickly ask all of you a trivia question to find out कि आप इसका answer जानते हैं. And if you know the answer, stay tuned till the end of the session so that you could tell us what the answer is as well. But you can put that in the comment section too. The question being, which Rajasthan batter scored a century against Hyderabad in the first half of the Indian T20 League 2021, जो इंडिया में हुआ था? I'm pretty sure VRV might also know the answer to this, but like I said, stay tuned till the end when we reveal the answer. But in terms of coming back to the match, जैसे कि VRV ने अभी बताया that on one hand, of course, Hyderabad का performance खास नहीं रहा है, whereas Rajasthan has also come from that defeat from Delhi. तो सबसे पहले बात करेंगे about the fact that Hyderabad के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा, whether we're talking about an underperformer, in terms of David Warner, जो हम expect करते हैं कि he will come out and perform, या भुवनेश्वर कुमार की जो inability to actually get those wickets that he's known for. उससे पहले शुरू करते हैं, what are your viewpoints on that? जी मैं पहले बैटिंग से शुरू करूंगा। SRH की टॉप 5 बिल्कुल फ्लॉप शो रहा है उनका, चाहे वो विलियमसन है, चाहे वार्नर है, चाहे केदार जाधव हैं, चाहे हमारे पांडे जी हैं। देखिए उन्होंने बिल्कुल बढ़िया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जैसे ऐसे लग रहा है कि बहुत कैजुअल अप्रोच से जा रहे हैं, और किसी मैच में भी नहीं लगा कि मैच विनिंग नॉक खेलेंगे, या उनका ऐसे नहीं दिख रहा कि कुछ भी इन फॉर्म है। और साथ साथ बॉलिंग में वो जरूर बोलूंगा कि देखिए पिछले मैच में उन्होंने बढ़िया बॉलिंग डाली थी, और जेसन होल्डर हो चाहे संदीप शर्मा हो, नीचे नई बॉल से अच्छा बॉल डाला था। पर भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सा लैक ऑफ पेस मेरे को लग रहा है कि उनकी किसी बॉडी में किसी पार्ट में निगल तो नहीं है, बॉडी उनकी फिट है, क्योंकि आगे उन्होंने विश्व कप भी खेलना आने वाले महीने में। देखिए उनको उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है SRH के लिए। आई नो दे हैव नथिंग टू लूज नाउ, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, बट फिर भी अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी के लिए प्लेयर को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और जब भी जाते हैं मैदान में 100% देना चाहिए। पर मैं चाहूँगा आज कुछ मैं चेंजेस देखना चाहूँगा SRH में, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो इनके मेन प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो बेंच पे बैठे हैं प्लेयर काफ़ी समय से, उनको मौका देना चाहिए ज़रूर। पर डेविड वार्नर और विलियमसन जैसे फॉरेनर क्रिकेटर्स आके जैसे डेविड वार्नर की हमने पिछले सालों में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखी है, उनका स्पेशली एटीट्यूड ग्राउंड में बहुत नीचे के लेवल का हो चुका है। वो काफ़ी अपने आप में ही मेरे ख्याल से डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं, काफ़ी उनसे अपेक्षा आती है SRH को, और कई बार जब आप रन नहीं बनाते हो तो बहुत आप एक शेल में चले जाते हो जो होता है नेगेटिव शेल। तो मेरे ख्याल से उनको अगर
नहीं मौका मिलता, पर फिर भी एक तरह टीम की सपोर्ट करनी चाहिए बाहर बैठ कर। आई थिंक वो जो कैप्टनसी का डिसीजन भी लिया गया था, प्रॉब्ली इट वाज टेकन इन द पर्सपेक्टिव कि अगर विलियमसन विल कम इन देन थिंग्स वुड गेट बेटर फॉर हैदराबाद इन द सेकंड लेग, पर वैसा नहीं हुआ। क्या आपको लग रहा है कि जो कॉम्बिनेशन साथ जा रहे हैं दैट इज नॉट वर्किंग आउट, और इज इट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज शॉन पॉलक डिड मेक दैट स्टेटमेंट कि ही इज अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट बार बार केदार जाधव और मनीष पांडे को चांसेस क्यों दे रहा है, बिकॉज यू ऑल्सो जस्ट स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट बहुत सारे प्लेयर्स बेंच पे है, उनको शायद खिलाना चाहिए। अब what do you think about that particular comment, because he says even Jadhav has been inconsistent with his performances? बिल्कुल, शॉन पॉलक की स्टेटमेंट बिल्कुल बढ़िया है। और देखिए, ये इंडियन क्रिकेटर्स, जिस टीम के इंडियन क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करते, वो टीम लीग में अच्छा नहीं करती है। आप किसी टीम को भी उठा के देखेंगे पास्ट में या इस अभी आईपीएल जो चल रही है, अगर आपके इंडियन कोर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको 11 में से 7 इंडियन प्लेयर्स खिलाना पड़ते हैं, तो उन 7 प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। शॉन पॉल ने बिल्कुल सही बोला। तो देखिए, केदार जाधव हो या मनीष पांडे हो, ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी लंबे समय तक खेले हैं, तो इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको अपना एक परफॉर्मेंस देना चाहिए। फ्रेंचाइज आपको इसलिए खरीदती है या आपको बाय करती है बिकॉज दे थिंक यू आर वेरी गुड एट दिस, बट अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस करेंगे, और उनकी इंटेंट भी नहीं लग रही है मेरे को कुछ खास, कि एक तो स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती है, जो सी बहुत कॉमन चीज है बल्लेबाजों को, इस स्तर पे खेलने वालों को पता होता है कि स्ट्राइक रोटेट करना। अगर आपकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही तो आप स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे एंड में जाइए, थोड़ा समय लीजिए और बड़े रन बनाने के लिए सोचिए। पर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि विलियमसन को, चाहे उन्होंने कैप्टन बनाया, निवेदना ये होता है कि अगर आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करती है तभी आप अच्छे कप्तान दिखते हो। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप एज अ कैप्टन भी आप अच्छा नहीं दिखते हो ग्राउंड में, तो आलोचना आप पर आएगी जरूर। और देखिए, डेविड वार्नर से कप्तानी इसीलिए ली थी क्योंकि वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने पहले बोला कि उनका एटीट्यूड, जैसे वो पहले 2-3 साल हमने देखा होगा जब कैप्टन थे, इलेक्ट्रिक होते थे ग्राउंड में, भागते थे, बॉलर से बात करते थे, बहुत इन्वॉल्व होते थे। अब आपने पिछले इस साल देखा होगा, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते क्रिकेट में, और डगआउट में भी बैठे होते हैं, अपने ख्यालों में खोए होते हैं। यही दिखता होता है कि जब आपको मेंटल प्रेशर पड़ता है तो तब आप कैसा रिएक्ट करते हो। तो मेरे ख्याल से डेविड वार्नर को नॉट ओनली इन आईपीएल, अपने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के कैरियर के लिए बारे में सोचना पड़ेगा, मेंटल अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका करेक्टर तभी सामने आता है जब आप जिंदगी में मुश्किलों में पड़ते हो, तो बेसिकली अब उन्हें अपना करेक्टर शो करना पड़ेगा। राइट, अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भी दिखता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि मेंटल प्रेशर से कैसे उभरेंगे, एंड वी हैव टू सी दैट, बिकॉज लाइक यू आर राइट, उनका जो स्पिरिट है, उनका जो फायर क्रैकर अप्रोच है, वी आर ऑल मिसिंग, कि वो एक्चुअल वार्नर शो हमें दिख नहीं रहा है। बट द अदर पार्ट बीइंग कि बहुत कॉन्वर्सेशन चल रहा था, विल जेसन रॉय बी द आइडल to coming in to really step it up for Hyderabad, और अभी उनको कैप मिला है, he is making that debut today. तो आपको क्या कहना है? Do you think it's a good decision that they've gone ahead with? नहीं, बिल्कुल बढ़िया। मैंने जैसे बोला, चेंजेस होने चाहिए जब आपके मेन खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो जेसन रॉय काफी समय से बेंच पर बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनको चांस मिलेगा। मे बी जेसन रॉय लक लेके आए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर करें, तो मे बी चाहे वो क्वालिफाई मत हो पर एंड अच्छा कर जाए अपने सीजन में, थोड़ी सी लाज बचा जाए, अपनी इज्जत बचा जाए जाते जाते एसआरएच। तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत बढ़िया एसआरएच ने लिया है ये डिसीजन। और मैं देखना चाहूंगा और किसी का डेब्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई यंग इंडियन खिलाड़ियों को मौका भी दिया जाए। राइट, और कोई चेंजेस आप देखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ हैदराबाद? देन वील ऑफ कोर्स गो ऑन टू टॉक अबाउट राजस्थान। नहीं, जरूर। देखिए, पिछले कई सालों से सिद्धार्थ हॉल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे एसआरएच के लिए। आई डोंट नो कि वो क्यों पिछले 1-2 साल से उनकी प्लेइंग 11 में रेगुलर नहीं खेल रहे हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कोई इंजरी का वजह है या कोई परफॉर्मेंस है या कोई और वजह। हम देखना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि एक समय में वो उनके मेन खिलाड़ी होते थे। तो जरूर मैं देखना चाहूंगा कि उनको आज मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। सो लेट्स सी। One perspective अगर हम देख, we see in the first leg of the IPL जो हुआ है, was even I enjoyed personally watching that Johnny Bairstow का show जो हम देखते थे in the first leg. अभी उनका जो absence है, of course maybe that they think that Roy might be able to step in. Like you said, वो तो playoffs से already out हो चुके हैं, लेकिन like you said, maybe to keep that respect and probably get out of the tournament is way better than giving up once for all. तो ये effect कहाँ से, where who do you think is going to fill it? Will it be Roy, or do you think Williamson से भी expect किया जा सकता है? जी बिल्कुल, विलियमसन से तो हम अपेक्षा करेंगे कि कैप्टन है तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। देखिए, जॉनी बेयरस्टो ने जो दिल्ली में ये इनिंग खेली थी, तो 124 रन की इनिंग खेलती, मेरे को अभी तक याद है, बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी। और ऐसी इनिंग तो मैंने बहुत कम अपने समय में देखी है कि
बहुत एक ऐसा मोमेंटम बनाया था कि दूसरी टीम धराशायी हो गई थी बिल्कुल। तो बेसिकली इनको डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं। पर देखिए ऐसे में मैं ये भी सोच सकता हूँ कि केन विलियमसन को स्टेप अप करना चाहिए। और ये चीज़ देखिए याद रखिए, जब आप हार रहे होते हैं यू हैव नथिंग टू लूज, राइट। आपको दूसरी टीम को पता है कि आप अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर आप स्टिल आपको अपना करैक्टर शो करना, मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ। केन विलियमसन एक महान खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के लिए इतने बड़े बड़े शतक बना चुके हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्या मिस हो रहा है? क्या मेंटल अप्रोच में है? क्या आप लाइट ले रहे हैं आईपीएल को? ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। टीम मैनेजमेंट को बात करनी पड़ेगी केन विलियमसन और सीनियर खिलाड़ियों से कि उनकी अपेक्षा उनके साथ क्या है। मेरे ख्याल से जरूर की होगी वीवीएस लक्ष्मण जैसे महान खिलाड़ी डगआउट में बैठे, उन्होंने जरूर बात की होगी बैट्समैन से, सारे जितने भी तमाम बैट्समैन हैं इनकी टीम में। तो देखिए जेसन रॉय को आज मौका मिला है, मेरे को लगता है उनको प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया की लीग है, आप पर सारे लोगों की निगाहें होती हैं। तो मेरे ख्याल से जेसन रॉय का बहुत बढ़िया एक मौका है। और मैं देखना चाहता हूँ और इनके जो से भारतीय जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी स्टेप अप करना चाहिए, वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो तमाम, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी एक बढ़िया लीग है कि जहाँ पर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, परफॉर्म करते हैं आप, इससे आपकी कंट्रीज की टीम की जगहें भी खुल सकती है। चाहे इंडियन टीम है चाहे दूसरे देशों की टीम्स है, पूरी दुनिया इस आईपीएल को फॉलो करती है। इन टर्म्स ऑफ कोर्स जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में क्या गलत जा रहा है फॉर हैदराबाद, ऑफ कोर्स हमने वो एनालाइज कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान के लिए भी वो डिफीट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट मैच अगेंस्ट दिल्ली, उनके लिए क्या आपको लगता है कि द बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं मिला? ऑफ कोर्स कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में दे हैव विद मेनी न्यू फेसेस, चाहे शम्सी हो, एवन लुइस हो, इन टर्म्स ऑफ दैट, लेकिन क्या आपको लगता है कि बेस्ट 11 का कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं मिला या मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन राजस्थान करंट फॉर्म? जी निवेदना, यू आर स्पॉट ऑन। देखिए जब अगर आपकी टीम में हर मैच में एक दो दो तीन तीन चेंज होते हैं, इसका मतलब यही होता है आपकी टीम सेटल नहीं हो रही है। कभी आप मॉरिस को खिलाते हैं, कभी शम्सी को खिलाते हैं, कभी लिविंगस्टोन को खिलाते हैं, कभी ल्यूइस को खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे अब देखिए रियान पराग की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है इस सीजन में। जब से वो आए एक दो शॉट्स अच्छे जरूर खेलते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं करते। सिर्फ संजू सैमसन एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकते, सिर्फ संजू सैमसन एक बड़ा टारगेट चेज नहीं कर सकते, ये आप भूल जाइए। आपको 11 के 11 प्लेयर्स को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जैसे सीएसके करती है। जैसे चाहे वो 2 ओवर डाले, चाहे थोड़ी सी बैटिंग करके, जैसे जडेजा ने 8 बॉलों में 22-25 रन बना दिए, ऐसी कंट्रीब्यूशन किसी दिख नहीं रही राजस्थान की तरफ से। और मैं एक चीज बोलने जाऊंगा, जैसे मॉरिस हैं, इतने महंगे खिलाड़ी हैं, उनको बाय किया गया है, और पर उन्होंने अभी तक अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी है इस टूर्नामेंट में। देखिए कि पिछले मैच में जब वो पिछले मैच में ड्रॉप हुए, उससे पहले वो खेल रहे थे, तो आप देखिए कहाँ उनकी लाइन लेंथ ही इतनी खराब थी। इतने T20 के आप प्रो प्लेयर हैं, प्रोफेशनल बुलाए जाते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं, कहाँ गलती है? तो मैं चाहता हूँ कि कुमार संगकारा के साथ मैं खेला हूँ, वो खुद बहुत मेहनती खिलाड़ी थे। मेरे को लगता है कि उन्होंने जरूर बात की होगी मॉरिस जैसे खिलाड़ियों से, शम्सी जैसे खिलाड़ियों से, ल्यूइस जैसे खिलाड़ियों से, लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ियों से, कि आप उनकी अपेक्षा उनसे क्या है। क्योंकि देखिए कार्तिक त्यागी हर ओवर में, हर मैच में आके आपको लास्ट ओवर में नहीं जिताएंगे, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी एज अ टीम ग्रुप। At the end of the day, yes, मतलब स्टार प्लेयर तो एक ही होगा, but it is the combination of everybody coming together. But ये दोनों teams of course have clashed before in the Indian T20 league. तो अगर हम head to head देख सकते हैं and of course get VRV's opinion as to where when they have clashed previously, 14 matches में clash हुए हैं, and if you look at that 7-7 है, but on the other hand, Hyderabad have won 4 when they're batting first, and Rajasthan of course have won 6 while chasing. Like you of course have said before as well, sometimes ये stats will not matter, लेकिन आज के मैच के लिए कितना खास होगा in terms of where they stand currently? देखिए आज के मैच, देखिए स्टैट्स तो इनके ऑलमोस्ट बराबर के ही हैं, कुछ ऐसे ज्यादा है नहीं फर्क इनमें। बट देखिए मैं स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा, पास तो पास है। आप आज की बात कीजिए, आज क्या आपकी फॉर्म है, आज आपको कौन से खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। देखिए मैं इन चीज की बात करता हूँ, पहले जो हो गया सो हो गया। पर देखिए इनका सिर्फ एक ही एक मकसद होना चाहिए, मैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बोलूंगा कि राजस्थान के पास अभी भी बने रहने का मौका है। वो कुछ भी कर सकते हैं अभी भी टूर्नामेंट में, पीछे से आके भी टॉप 4 में आ सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि वो एक सही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। और एसआरएच के साथ मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि थोड़ा सा दबाव डालना चाहिए मैनेजमेंट को, स्पेशली जादव पांडे जैसे खिलाड़ियों से, केन विलियम्स उनके से क्वेश्चन करने चाहिए कि कहाँ क्या गलती हो रही है, और उनके कोचिंग स्टाफ से भी बात करनी चाहिए। क्योंकि आप रिलैक्स होके सिर्फ 40-45 दिन बिताएंगे और घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है, एक इसका स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से खेलिए। तो मैं चाहूंगा कि एसआरएच एटलीस्ट एक अच्छा फाइटिंग गेम खेले राजस्थान के साथ, और राजस्थान
आज मेरे लिए फेवरेट है, बट मैं चाहूंगा कि बहुत बढ़िया गेम होना चाहिए। करेक्ट। और आपने जैसे कि बोला अबाउट द कोच, आई थिंक ट्रेवर बेलिस ने ये भी स्टेटमेंट किया था दैट ही वाज नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट जेसन रॉय सिलेक्शन बिफोर द मैच, लेकिन वो अभी हो चुका है। बट ही डिड से कि वो एक टीम मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो फ्रेंचाइज वांट्स टू लीव द इंडियन T20 लीग कॉम्पिटिशन ऑन अ हॉरिबल नोट। इफ दे लीव यू वांट टू डू इट gracefully। ऐसा नहीं जैसे कि वीआरवी ने बोला दैट you just go out of the competition without even giving a fight। लेकिन हैविंग सेड दैट आज का मैच होने जा रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, तो अगर उसका हेड टू हेड हम देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स गेट वीआरवीज ओपिनियन एज टू व्हाट वुड बी एन आइडियल चॉइस टू गो with whoever of course wins the toss। वहां पे तो chasing teams won twice lost thrice, average score being 159 in last 5 matches at the Dubai International Stadium। और जो भी हम देख रहे हैं in the second leg, do you think this is a good score to go with and what should the choice be? जी जी बिल्कुल, 160 टारगेट इज़ वेरी गुड इनफ, क्योंकि आप देखते आ रहे होंगे पिछले गेम्स में भी आराम से चेज नहीं हो रहा है ये टारगेट, और बढ़िया बल्लेबाजी करने में। क्योंकि देखिए अबू धाबी हो या दुबई हो, इनकी डायमेंशंस बड़ी हैं, ग्राउंड बड़ी है, बाउंड्री बड़ी है इनकी। तो ये शारजा की तरह छोटे डायमेंशंस नहीं है कि छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो चेज हो जाएगा। मैं चाहूंगा दुबई में आप देखिए, एक चीज आप याद रखिए, टॉस आपके हाथ में नहीं है। यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, चाहे आपकी बॉलिंग आए चाहे आपकी बैटिंग आए, आप दोनों के लिए रेडी रहें। आप ये नहीं सोच सकते कि हम बैटिंग करेंगे तभी जीतेंगे, बॉलिंग करेंगे तभी जीतेंगे। अगर दोनों टीमों में से किसी ने अच्छा प्रदर्शन करना है, दे हैव टू गो विद द फाइटिंग स्पिरिट। ऐसे नहीं होगा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे इस कारण हार गए, जब बॉलिंग नहीं आई हमारी तो इस कारण हार गए। ऐसा नहीं कुछ होता है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे यू गाइस आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बड़ी बड़ी टीमों से खेल रहे हैं। पर मैं ये चाहूंगा कि जो टीम भी पहले बल्लेबाजी करे, जैसे हमने कल का मैच भी देखा, विकेट अब बहुत स्पार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए। विन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट, मेरे ख्याल से ये अच्छा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आज। एंड अगर हमारे एक्सपर्ट ने बोला है जो भी जीतेगा उनको पहले बैटिंग करना चाहिए, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट द अपडेट कमिंग इन इज दैट राजस्थान हैव वन द टॉस एंड चोजन टू बैट फर्स्ट। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। व्हाटएवर यू प्रिडिक्टेड वही सही रहा है। हु डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग विद द बैट राजस्थान की टीम में से विल बी चेंजिंग थिंग्स अराउंड? देखिए संजू सैमसंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं चाहूंगा कि संजू सैमसंग को एक चीज याद रखनी चाहिए कि ही जैसे उनकी टीम की बैटिंग चल रही है, उनको 20वें ओवर तक बैटिंग करनी ही पड़ेगी। ही वो एंकर का रोल जो हम कहते हैं कि पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक उनको एक कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और क्योंकि उनके बाकी खिलाड़ी हैं जो इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं है, तो उनके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के एंड तो मेरे ख्याल बड़ा टारगेट दें इनको। ऐसा रच को देखिए 20 ओवर तक अगर संजू सैमसंग खेलेंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट 160 ने मेरे ख्याल से अराउंड 180 के आसपास लगा सकते हैं। तो संजू सैमसंग इज की फॉर द राजस्थान बैटिंग लाइनअप। Okay, do you all agree with the fact that Sanju Samson will be that player to change things around? हमें comment section में बताइए। But also at the end of the day ये जो performances हो रहा है, it is the race to the playoffs. So let's take a quick look at the points table to find out कि क्या scenario होगा, of course in terms of going forward for Rajasthan, because obviously like we've already spoken in detail कि हैदराबाद तो इस competition playoff से तो बाहर हो चुका है। In terms of qualification, राजस्थान के लिए if they qualify directly, if they win at least 4 of their remaining 5 games, if they lose 2 games, the net run will come in the picture. With RR having a poor run rate, they'll need to win other games with massive margins. 3 defeats in the remaining fixtures means RR are out of their playoff race. तो ये playoff की जो मतलब बात करें अभी, what is your take VRV? Of course it'll depend on how others are also performing, net run rate and all of that. लेकिन आपको क्या लगता है, is there a chance with the competition being the way it is right now कि things can change around for Rajasthan? देखिए राजस्थान के लिए डेफिनेटली चांस है, जैसे भी आपने बोला निवेदना। देखिए ऐसे है कि पर उनके लिए है कि हर गेम हर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं है कि वो लाइट ले जाएं, कोई बात नहीं, अगले मैच तक छोड़ दें। पर अभी देखिए कि ये चाहे मुंबई है या केकेआर है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, ये 4 टीम ऐसी हैं कि अभी भी ये रेस में है। पर इनको हर गेम पर अपना 100% देना पड़ेगा, अपनी बढ़िया प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बढ़िया प्लेयर ग्राउंड पे उतारने पड़ेंगे, विकेट के अनुसार उतारने पड़ेंगे, दूसरी टीम के कॉम्बिनेशन के अनुसार उतारने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अभी भी इन टीमों में दम है। पर मैं आज ये चाहूंगा कि राजस्थान के जो से स्पेशली मिडल ऑर्डर है वो फायर करे। अगर वो फायर करेंगे संजू सैमसंग के साथ, मेरे ख्याल से नहीं ऐसा रच उन्हें रोक सकती आज।
ओके, ये तो प्रिडिक्शन वीआरवी का अभी आ चुका है, बट ऑल्सो टेक अ क्विक लुक एट द प्लेइंग बोथ इट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, वही ऑफ कोर्स मैच, यू नो, दैट टीम विल ऑफ कोर्स विन. One person that of course VRV spoke about last time is Kartik Tyagi, but unfortunately he is out with an injury. So Morris and Lewis of course return. अगर हैदराबाद के बारे में बात करें, Jason Roy is at the top for David Warner. Pandey and of course Kedar Jadhav also miss out. Or Sid Call replaces injured Khalil. So that was another prediction जहाँ पे VRV बोल रहे थे कि why he's not playing. So I guess he'll be stepping in as well. So looking at both the teams right now, आपको क्या लगता है? Do you think this is balanced now for both the teams या फिर भी कुछ missing है VRV? नहीं, देखिए, आई एम वेरी हैप्पी कि हैदराबाद ने एक स्टेप अप किया थोड़ा सा एंड खिलाड़ियों को बाहर बिठाया. देखिए, ऐसे ही होता है कि अगर आपके बड़े खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो क्यों आप यंगस्टर्स को क्यों चांस ना दे जो इतने समय से बाहर बैठे हुए हैं. बहुत अच्छा लगा अभिषेक शर्मा हो, चाहे सिद्धार्थ कौल हो, चाहे जितने भी हमारे खिलाड़ी बढ़िया हैं, उनको प्रदर्शन करने के लिए मौका मिला है आज. तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया एक सिग्नल भी देता है, चाहे आप जितने मर्जी बढ़िया खिलाड़ी हो, चाहे मनीष पांडे हो, चाहे केदार जाधव हो, चाहे वार्नर हो, आप बाहर बैठ सकते हैं अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल सेटअप बाय SRH. और साथ ही साथ मैं कार्तिक त्यागी की बात करना चाहूंगा. अभी यंग हैं तो इंजरीज आएंगी, पर इससे उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इंजरीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फास्ट बॉलर्स लाइफ. तो मेरे ख्याल से ये एक कार्तिक त्यागी के लिए लेसन भी होगा कि आप एक दिन बहुत अच्छा करेंगे और 4-5 दिन बाद आप इंजर्ड हो जाएंगे, एंड दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट गोज. तो देखिए, बहुत बढ़िया चेंज हुआ. मैं SRH के लिए खुश हूँ कि उन्होंने आज अपना थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाया और यंगस्टर्स को चांस दिया. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन दैट हैदराबाद हैज गॉन फॉर. क्या इट हैज कम टू लेट, कि थोड़ा पहले करना चाहिए था? मे बी सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट. जी, नाम के सिर्फ नेम्स के साथ जा रहे थे. मनीष पांडे हैं, चाहे वार्नर हैं, केदार जाधव, उनको लग रहा था कि ये परफॉर्म करेंगे, सिर्फ नेम्स के साथ जा रहे थे. देखिए, वो स्टेप अप नहीं कर पाए. कई बार क्या होता है कि कुछ खिलाड़ियों का बेस्ट निकल जाता है समय के साथ साथ. तो मेरे ख्याल से आपको पहले ही, जैसे अभिषेक शर्मा है, उनको ऑन एंड ऑफ खिला रहे थे. मेरे ख्याल से जब यंगस्टर्स हैं उन पे आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए रादर देन उन पे जो मतलब अपनी बेस्ट खेल चुके हैं. अभी देखिए कि आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन कहा, इन्होंने अपने आते आते बहुत देर लगा दी, बट अभी भी देखिए ऐसे है कि इन जो यंगस्टर्स खिलाड़ी हैं, इनके पास देखिए कितना बड़ा मौका है. आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे, चाहे सिद्धार्थ कौल, उनके पास कम बैक करने का मौका. हालांकि एक समय पे वो नंबर 1 बॉलर होते थे SRH के लिए, बट देखिए अब उनको दोबारा से अपना कैरेक्टर, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका है. उनको बताना पड़ेगा आप हम अपने फ्रेंचाइज को कि देखिए हम अच्छे हैं और अभी भी हम अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं, कि ऑन गोइंग अपकमिंग आईपीएल या नेक्स्ट सीजन आईपीएल के लिए ये लोग अपना दावा और मजबूत कर सकते हैं. Right, so a great platform indeed for the youngsters as well to showcase what they have. We also saw in terms of Karthik ne, of course, Rajasthan ke liye kya kiya tha, but like VRV said, injury is a part and parcel of it. You know, I was of course going to talk about the player battles, lekin usse pehle, before we get into that, there's a question Yash has asked: does Hyderabad, you know, should have made this changes in the previous match itself? जैसे कि हमने बात किया था, you know, VRV अगर आप दूसरे point की तरफ से देखें, why would it take so long to make this change rather? जी बिल्कुल, जैसे यश ने भी बहुत स्पॉट ऑन बोला कि इतना लेट क्यों किया. यश, इसका आंसर एक्चुअली बेस्ट आंसर तो SRH की मैनेजमेंट ही दे सकेगी, जो मैं बाहर से बता सकता हूँ. तो मेरे को ये लगता है कि SRH ने बहुत लंबे समय तक, जैसे मैंने पहले बोला, डेविड वार्नर हो, जाधव हो, ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया. देखिए, भरोसा जताना बनता भी था, क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस उनकी बहुत बढ़िया रही है. SRH के लिए उन्होंने बहुत मैचेस जीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. पर मेरे को लगता है कि आप जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो, आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है. अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अगर वो उसका फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, तो उसको उस समय बाहर बिठाएं और उसको थोड़ा सा टाइम दें. वो थोड़ा सा अपने आप पे सोचेगा, टीम मैनेजमेंट से बात करेगा और अपनी गलतियों पे काम करके दोबारा आ सकता है. पर मैं चाहता हूँ कि पर जो सा टूर्नामेंट होता है, आप टूर्नामेंट में चांसेस नहीं ले सकते किसी के साथ, चाहे वो कोई इतना बड़ा खिलाड़ी हो. हमने पास्ट में देखा होगा, डेविड वार्नर से बड़े बड़े खिलाड़ी भी प्लेइंग 11 से बाहर हुए हैं, कितनी फ्रेंचाइजीज ने बाहर बिठाए हुए हैं. तो मेरे ख्याल से पर आज आए हैं, अब ये लेट तो हो चुके हैं, पर मैं अभी भी बोलूंगा कि अब इनको अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए खेलना चाहिए और दूसरी टीम्स को अच्छी टक्कर देनी चाहिए जाते जाते. हाँ, एक चीज SRH जरूर कर सकती है कि किसी बड़ी टीम को हराएगी तो पॉइंट टेबल्स में उथल पुथल जरूर हो जाएगी.
राइट और ऑफ कोर्स दैट इज वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. दूसरी बात जो वीआरवी ने बोला दैट वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर विल बी संजू सैमसन. सो एन एक्साइटिंग बैटल जो हो चुका है पहले इज बिटवीन संजू सैमसन एंड भुवनेश्वर कुमार. इफ यू कुड टेक अ लुक एट दैट एंड वील फाइंड आउट बिकॉज ऑफ कोर्स वीआरवी ने बोला है संजू सैमसन इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. आपको इस बैटल के बारे में क्या बोलना है वीआरवी? ऑफ कोर्स भुवनेश्वर कुमार उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ही इज नोन फॉर, बट लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया दिस सीजन हैज नॉट गॉन द वे आइडियली इट शुड हैव. ही हैज डिसमिस संजू ट्वाइस. क्या आपको लगता है वो थर्ड टाइम अराउंड ही इज गोइंग टू बी गेटिंग संजू? देखिए अभी फिलहाल में जो संजू की फॉर्म चल रही है वो भुवनेश्वर से काफी अच्छी है, और भुवनेश्वर का एक थोड़ा सा मैं बड़ा आश्चर्यजनक हूँ देख के एक चीज को कि भुवनेश्वर की पेस बहुत कम हो गई है. पिछले मैच में आपने देखा होगा सिर्फ 120 और 22 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे, और वो इंडिया के वर्ल्ड कप की टीम में है. तो इससे थोड़ा सा सिलेक्टर्स को भी देखा होगा, सिलेक्टर्स ने भी देखा होगा कि वो अपनी बेटर फॉर्म में नहीं है, अच्छी फॉर्म में नहीं बॉल डाल रहे हैं. पर आज का मुकाबला संजू सैमसन थोड़ा सा पलड़ा उन पर भारी है, और साथ ही साथ पर मैं भुवनेश्वर से एक चीज देखना चाहूंगा कि नई बॉल से अपना जैसे जलवा पहले दिखाते रहे उसी इफेक्ट से बॉल डालें. थोड़ा सा आई नो फास्ट बॉलर को नीगल चलता रहता है, बट आई गेस कि एसआरएच को भुवनेश्वर की बहुत जरूरत है. भुवनेश्वर अगर अप फ्रंट विकेट निकालेंगे तो जरूर एसआरएच के लिए बढ़िया होगा. पर आज के इस बैटल में मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा. Okay, so we'll have to wait and watch if Bhuvaneshwar is going to get Sanju Samson or not. और दूसरी बात जो होती है of course is the fact that 11 wickets, of course India's most trusted fantasy platform के बारे में हम बात करेंगे as to how you can win points, make your fantasy teams. Let's take a quick look at the rules of this particular competition जहाँ पे you will be able to win a lot of credits as well. You'll get 100 credits to choose your team. You can of course download the app 11wickets.com, and the 12th man also, if he's in the 11, you will earn fantasy points in the place of the non-playing cricketer. 12th man can be picked up to 9 credits only. तो बहुत ही exciting platform है आपके लिए, and to of course help you make a better team. Who better than VRV to tell you कि उनके क्या top 4 picks है जो आप of course अपनी fantasy team में add कर सकते हो. तो VRV को पूछ लेते हैं what are the top 4 picks जो उनको जाना चाहिए for today's match. देखिए नंबर 1 विल बी राशिद खान. देखिए मैजिकल स्पिनर हैं, और सबसे बढ़िया बात उनकी ये है कि यू नो वेरी एक्यूरेट और विकेट निकाल के देते हैं इंपॉर्टेंट समय में. और दूसरे मेरे खिलाड़ी हैं जेसन होल्डर. जैसे उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया, वन मैन आर्मी लग रहे थे स्पेशली बैटिंग में, तो इनके साथ मैं जाऊंगा आज. और थर्ड मेरे खिलाड़ी रहेंगे संजू सैमसन. संजू के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, और साथ ही साथ कप्तानी का प्रेशर भी बहुत बढ़िया तरीके से डील कर रहे हैं. तो संजू सैमसन के साथ जाऊंगा मैं. और मुस्तफिजुर बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और बहुत बढ़िया इनका रिकॉर्ड है T20 में. और मैं देखना चाहूंगा कि आज वो अपनी रिस्ट से कितने बैट्समैनों को चिकाते हैं, क्योंकि उनका रिस्ट इतना सफल है, इतनी बढ़िया वेरिएशन करते हैं. तो आज मैं जाऊंगा मुस्तफिजुर रहमान से के साथ एज द फोर्थ प्लेयर. Okay, so of course VRV ने अपने 4 पिक कर लिए, तो you can also of course go ahead, download the app and add all these players so that later you can come back and tell us if VRV's prediction actually helped you. लेकिन there's a question coming in from Bharat Singh, should Morris be promoted up the order at 5? उनको ये पूछना है. देखिए भरत जी, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग. देखिए एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, मॉरिस को आप प्रमोट जरूर कर सकते हैं, पर तब कर सकते हैं कि अगर बहुत बढ़िया उनकी बल्लेबाजी चल रही है और 15 या 14 ओवर तक उनके 120-25 रन बन चुके हैं और 1 या 2 आउट हुए हैं, तब उन्हें आप एज अ हिटर अंदर भेज सकते हैं कि लास्ट 5 ओवर का बढ़िया इस्तेमाल करें. पर अगर उनके विकेट गिरते हैं, जल्दी गिरते हैं, तो फिर उनको उनके नॉर्मल बैटिंग स्लॉट पे ही आना चाहिए, बिकॉज देन बैट्समैन ही बढ़िया बॉलिंग को डील कर सकते हैं कि एंड ऑफ द डे ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. तो हाँ, उनका यूज करिए. अगर उनको 3-4 ओवर एंड में यूज कर रहे, 20-22 बॉल एंड में यूज करने के लिए भेजिए. अगर उनका 125 से 30 स्कोर बन चुका और विकेट सिर्फ एक आधी गिरी है, हाँ, तब वो यूजफुल हो सकते हैं, बट नॉट एट द कोलैप्स. अगर कोलैप्स हुआ तब उनका जाना उनके नॉर्मल पोजीशन पे ही बनता है. Okay, Bharat, we hope that answers your question. On the other hand, Kunal has predicted that SRH will win today and Ridhiman Saha will be the player of the match. वो तो कुणाल का opinion है, but now it's time to VRV की उनका क्या prediction है. VRV, according to you, ये बैच में कौन जीतेगा आज? जी, मेरे को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जीतेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान रॉयल एक बढ़िया टीम दिख रही है, बैलेंस टीम दिख रही है एसआरएच के मुकाबले. और साथ ही साथ देखिए, ये मत भूलिए कि जब जिस टीम में ज़्यादा खिलाड़ी का चेंज होता है, जैसे एसआरएच में हुआ है आज, तो वो खिलाड़ी पहला मैच खेल रहे हैं अभी दुबई में, सॉरी यूएई में आके अपना.
तो वो भी अपनी लैब पकड़ेंगे। और वहीं थोड़ा सा बेटर सेटल टीम है आरआर, और मेरे ख्याल से जो टीम कॉम्बिनेशन इनका चल रहा है अभी वो एसआरएच से बढ़िया है, तो आरआर के साथ मैं जाऊंगा अभी। ओके, वीआरवी हैज गॉन विद आरआर, लेकिन हमारे क्रिक ट्रैकर व्यूअर्स को भी हमने पूछा था इन अ फैन पोल कि उनके हिसाब से कौन जीतेगा। अकॉर्डिंग टू देम 54% इज गोइंग टू बी हैदराबाद एंड 46 इज गोइंग टू बी राजस्थान। अभी ऑफ कोर्स वो देखना बाकी है इफ दैट्स गोइंग टू हैपन और नॉट। लेकिन सबसे पहले ड्यूरिंग द शो आई डिड आस्क ऑल ऑफ यू अ ट्रिविया क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू बी रिवीलिंग द आंसर। इफ यू कुड टेक अ लुक एट व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इट वाज अबाउट Rajasthan scored century against Hyderabad in the first half of the Indian T20 League 2021. And the answer was Joss Butler. So whoever got it right, let me know in the comment section below. Of course, this has been a great interaction with VRV. He has, of course, gone with Rajasthan. His predictions about a certain, changes in the Hyderabad team has also come true. लेकिन उनका दूसरा prediction जो है, whether Rajasthan is going to walk away with this one and will Sanju Samson be the player to watch out for, वो देखना बाकी है. But before we wrap up, VRV, आप अपने viewers के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल यही बोलेंगे कि देखिए जैसे इनका इनपुट आता है, जितने भी हमारे तमाम दर्शक हैं अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जितने क्वेश्चन पूछते हैं इनसे हमारी भी थोड़ी नॉलेज और अपडेट होती है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो, क्योंकि हमें आपसे जुड़ के बहुत मज़ा लगता है, और आपके जितनी भी फीडबैक होती है वो इंजॉय दैट सो मच। सो जुड़ते रहिए क्रिक ट्रैकर के लाइव शो इन द एयर पर, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। Of course, we'll of course join all of you in the post match to really talk about what happened in the match. बहुत सारे लोगों ने comment किया है, especially with जैसे कि VRV spoke about Warner's mental space right now. बहुत सारे लोग were appreciating VRV you for that opinion कि उनको लगता है that is right. He is going through a difficult phase, but they're hoping कि Warner will be back in form. And on that very note, क्या होगा आज इस competition में देखना बाकी है. But until then, of course, I want to thank all of you for joining us on In the Air, sponsored by 11 Wickets on CricTracker. We will see you very soon.